I wish a very healthy morning to all my lovely champs. Beta, in today's our English class, we are going to study about articles. बच्चे articles are fixing words. Articles are fixing words. Why do we call them fixing words? Because they always fix their place before a noun. Articles हमेशा बेटा noun से पहले आते हैं. That is why we call them fixing words. Now we see that a, an and the. These three words we take them as an articles. A, an and the. And regarding their types, to which category a and belong and to which category the article the belongs to, now we are going to elaborate this. A and an stands for indefinite articles. Indefinite articles. And the stands for definite article. Why do we call them indefinite articles? Because beta, these are uncertain. We are not certain about these things with which the article a and an go with. For example, a boy, कोई भी लड़का हो सकता है, any boy can be there. An ox, कोई भी ox हो सकती है. And similarly, definite articles belongs to the certain things होती हैं जिसके लिए बच्चे हम sure होते हैं, ये है ही हैं. We are sure about the things. For example, the red fort. अब लाल किला के लिए हम sure है ना? Yes. So definite articles go with certain things and indefinite beta articles go for uncertain things. Let us elaborate these types. First, we are going to study about indefinite articles, which are a and an. Now, इन अल्फ़ाबेट्स, अब हम देखते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में बच्चे ए बी सी डी से लेकर जेड तक इन अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 लेटर्स. देयर आर 26 लेटर्स एंड अमंग दीज 26 लेटर्स ए ई आई ओ यू आर वाउल्स. ए ई आई और यू क्या होते हैं बेटा? वाउल्स, जिसको आप हिंदी में स्वर भी बोलते हो. आप पढ़ते हैं ना, छोटा अ, बड़ा अ, छोटी ए, बड़ी ए एंड सो ऑन. तो सो दीज आर वाउल्स एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर, जो बाकी जो बचते हैं हमारे लेटर्स, फॉर एग्जांपल बी डी सी एफ जी एच अप टू जेड, दीज एक्सेप्ट दीज, इन पांचों को छोड़कर जो बचते हैं लेटर्स, दे आर कॉन्सोनेंट्स. बेटा उनको हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल देम? कॉन्सोनेंट्स. जनरली इट इज़ सेड, आमतौर पर बच्चे ये कहा जाता है, द वर्ड्स बिगिन विद वाउल्स, कि जो वर्ड्स वाउल से स्टार्ट होते हैं आर फॉलोड बाय आर्टिकल एन. उसको हम किस आर्टिकल से फॉलो करते हैं? एन. For example, A, E, I, O, U will always be followed with the article N. It is generally said. It's okay. Now, if we add it further, and the rest of the letters, अब A, E, I, O, U को छोड़कर जो बाकी letters बचते हैं, they go with an article A. उनको हम किसके साथ यूज़ करते हैं? article A के साथ. For example, B, C, D, F, G, ये सभी articles जाएंगे हमारे, सभी letters हमारे जाएंगे article A के साथ. The article A always go with consonants and this fact is absolutely true, कि जो article A है बेटा वो हमेशा consonants के साथ जाता है. But अब सबसे important चीज़ जो हमें जाननी है, important fact to know is the article N follows the sounds of the vowels, not only the letters. अब बेटा हमें अभी ये कहा गया था ना कि जो N article है that will always follow vowels, it is said. बट बेटा द ट्रू फैक्ट इज, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आर्टिकल एन है वो वाउल्स की साउंड को फॉलो करता है, लेटर्स को फॉलो नहीं करता. इट ऑलवेज फॉलोज द साउंड्स. फॉर एग्जाम्पल अब आप देखिए, ए ई आई ओ यू आर 5 वाउल्स. अब लुक एट द एग्जाम्पल, डैश एप्पल, एन एप्पल, डैश एलिफेंट, एन एलिफेंट, डैश आउल, एन आउल, डैश इंक पॉट, एन इंक पॉट, डैश umbrella, an umbrella. Why we are using article an here? Because the vowels a, e, o, I and u, they are giving their own sounds. बेटा these vowels are giving their own sounds. ये जो vowels हैं ये अपनी खुद की sound को present कर रहे हैं. That is why we will go with an, with article an. Because बेटा जो article an होता है वो sound को follow करता है, letter को follow नहीं करता. Is it okay बच्चे? It follows the sounds. अब आगे देखिए, हैव अ लुक एट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स. कुछ और एग्जाम्पल्स को हम बेटा स्टडी करते हैं. डैश 1 रुपी नोट.
अब देखिए, अब आप कहेंगे मैम ये भी तो ओ जो है ये हमारा वाउल है, ठीक है हम मानते हैं ओ वाउल है। डैश यूनिवर्सिटी, अब यू भी मैम वाउल है, ओके बच्चे। डैश यूरोपियन, मैम यू ई भी वाउल है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब बेटा लेट अस अंडरस्टैंड इट, अब आप इसको पढ़ो, वन को स्पीक अप द वर्ड वन, वन। ओ जो है बेटा ओ हमारा वाउल है, बट क्या ओ अपनी साउंड दे रहा है? वेदर ओ इज गिविंग इट्स ओन साउंड, ओ वन, ओ इज गिविंग द साउंड ऑफ व एंड दैट स्टैंड्स फॉर वी, नॉट नॉट ओ या अ, नॉट। यू स्टैंड्स फॉर यू, यू की साउंड दे रहा है, दैट स्टैंड्स फॉर वाई। सिमिलरली बच्चे ई आपके यहाँ पर साइलेंट है, एंड यूरोपियन, यू आपकी साउंड दे रहा है यू की, एंड दैट ऑल्सो स्टैंड्स विद वाई। अब हमारा वी वाई वाई बेटा ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ये वाउल्स नहीं हैं, सो वी विल गो विद ए। यहाँ पर हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? वी विल गो विद आर्टिकल ए हेयर, not n, because n article goes with, it deals with the sounds of the vowel, not the letters. I hope this concept is quite clear to you.